So this is the first news in today's session. President Murmu confers National Florence Nightingale Award to 15 nurses. तो ये जो नाइटिंगेल अवार्ड है ये नर्सिंग प्रोफेशन के जो लोग हैं उनको अवार्ड किया जाता है इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर मेरिटोरियस सर्विसेज. National Florence Nightingale Award was instituted in 1973 by the Ministry of Health and Family. So please note down which ministry has instituted this award. This award has been instituted by Ministry of Health and Family Welfare, because as I've told you, this award is given to, this award is given to the professionals who are into the nursing profession. For their outstanding nursing services, they have awarded. Then award component, each awardee received a certificate of merit and cash reward of 1 lakh and a medal. तो 1 lakh का कैश प्राइज मिलता है, एक मेडल मिलता है इस अवार्ड के अंदर. एंड this year's awardees includes nursing professionals from various states and UTs representing categories such as auxiliary nurse midwife. तो different मतलब nursing जो categories हैं, auxiliary nurse midwife, lady health visitor, staff nurse. So you might be wondering कि सर auxiliary nurse and midwife ये कौन होते हैं? So ये health care professionals होते हैं who provide basic health care services. तो इसका नेम ही देख लो ऐसा है, auxiliary nurse and midwife. So they provide healthcare services in rural areas. They are trained to assist in maternal and child health. तो maternal and child health में ये assist करते हैं family planning and basic medical care in rural areas. तो 15 पर्सनल्स को जो है ये अवार्ड मिला है पर्सनस को. Who was the Florence Nightingale? ये कौन थी लेडी जिसके नेम के ऊपर ये अवार्ड बना हुआ है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, she was a British nurse and she was a social reformer and statistician. She was the founder of modern nursing. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए who is the founder of the modern nursing, तो आपको टिक करके आना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल. She was a British nurse. She was born in Italy and named after the city of her birth. तो जो उनकी सिटी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो भी वहाँ इटली के अंदर कोई जगह होगी, उनके नाम उस सिटी के नेम पर इनका नेम पड़ा. As she grew up, she decided that she wanted to help the sick and injured. तो उनकी ये एक ये डिज़ायर थी कि that she wanted to help the sick and injured and she wanted to become a nurse. Her father gave his permission for her to go to Germany to train in 1844. तो ट्रेनिंग के लिए, नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए उनको जर्मनी भेजा गया in a hospital, and when she returned she became the superintendent of hospital for gentle women in Harley Street in London. Then she came to she came to limelight during the Crimean War. क्रीमियन वॉर जब रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया एनेक्स कर लिया था उस टाइम पे, सॉरी नहीं, यूक्रेन से, लाइक ब्रिटेन वॉज एट वॉर विद रशिया एट दैट टाइम इन अ कन्फ्लिक्ट कॉल्ड क्रीमियन वॉर. तो ब्रिटेन एंड रशिया का कन्फ्लिक्ट था 1854 एंड 1856 के अराउंड. एंड द आर्मी बेस हॉस्पिटल एट स्कूटारी वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर आर्मी बेस हॉस्पिटल था इन कॉन्स्टेंटिनोपल. वो हॉस्पिटल इतना अनक्लीन था, पुअरली सप्लाइड विद बैंडेजेस एंड सोप, एंड पेशेंट did not have proper food or medicine. तो वहाँ पर ये चीज़ें देखकर she arrived in Turkey with a group of 38 nurses from England to ensure that wounded were kept clean and fed well. And she set up laundries to wash the linen and clothing and kitchens to cook food. This greatly improved the medical sanitary arrangements at Scutari and reduced the death rate. तो ये सब hygiene को इन्होंने improve किया, and because of that death rate got reduced. And work of Florence Nightingale and her nurses set the standards for the modern day nursing. Legacy: Florence returned after the war as a national heroine. She had been shocked by conditions in the hospital and began to campaign to improve the quality of nursing in the military hospitals. Florence published a book called Notes on Nursing. तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए. ये a book published by Florence Nightingale, Notes on the Nursing. She also founded the Nightingale School and Home for Nurses at St. Thomas Hospital in London. So this news is, ये वाला जो fact है इसको आप avoid भी कर सकते हैं. You can avoid this fact. Moving forward, Florence Nightingale's statistical achievements, and she was also a statistician. She became the first female member of the Royal Statistical Society in 1858. तो यूके के अंदर एक स्टैटिस्टिकल सोसाइटी है, रॉयल स्टैटिकल सोसाइटी, उसका मेंबर बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. So she became the member of the Royal Statistical Society also because she was a statistician also. And she was awarded the Order of Merit. तो ये एक अवार्ड है, ब्रिटेन के अंदर दिया जाता है, Order of Merit.
तो प्लीज नोट डाउन, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ऑर्डर ऑफ मेरिट ये कौन सा अवार्ड है? तो ब्रिटेन के अंदर दिस अवार्ड इज गिवन टू मार्क एज अ मार्क ऑफ ऑनर कन्फर्ड बाय द सॉवरन, मतलब वहां का किंग या क्वीन जो है ये अवार्ड जो है कॉन्फर करता है इंडिविजुअल्स के ऊपर। इंडिविजुअल्स जिन्होंने एक्सेप्शनल सर्विसेज दी होती है इन द एरिया लाइक आर्म फोर्सेज, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, तो इन एरियाज के अंदर जिन्होंने एक्सेप्शनल सर्विसेज दी होती हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इट वॉज फाउंडेड बाय किंग एडवर्ड 7 in 1902 and it is limited to only to a maximum of 24 living recipients। सिर्फ 24 लिविंग रेसिपिएंट्स तक ही ये अवार्ड दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा ये अवार्ड्स नहीं दिया जा सकता। एंड तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं इस न्यूज़ के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? व्हाट अवार्ड डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल विन? तो इन 1883 नाइटिंगेल वॉज अवार्डेड, कौन कौन से अवार्ड मिले थे इनको? एक तो हमने पढ़ लिया ऑर्डर ऑफ मेरिट, एक और अवार्ड मिला था, उसका क्या नाम है? रॉयल रेड क्रॉस बाय क्वीन विक्टोरिया, तो ये भी इनको मिला था। अब रॉयल रेड क्रॉस क्या है? ये भी एक ब्रिटेन का या यूनाइटेड किंगडम का ही अवार्ड है। इट इज अ मिलिट्री डेकोरेशन, बट ये डिफरेंस है, वो सिविलियंस को भी मिल सकता है, बट ये मिलता है सिर्फ मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड। इट इज अवार्डेड इन यूनाइटेड किंगडम, तो इस तरह का होता है रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड। तो इट इज गिवन इन यूनाइटेड किंगडम एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज फॉर एक्सेप्शनल सर्विसेज इन ओनली इन मिलिट्री नर्सिंग। याद रखना, ओनली इन मिलिट्री नर्सिंग। तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1883 बाय क्वीन विक्टोरिया। तो जैसे कि ऑर्डर ऑफ मेरिट एडवर्ड, किंग एडवर्ड ने इंस्टीट्यूट किया था, एंड रॉयल जो रेड क्रॉस अवार्ड है इट वॉज इंस्टीट्यूटेड और एस्टैब्लिश्ड बाय क्वीन विक्टोरिया टू रिकॉग्नाइज द वुमेन सर्विस इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर जो वुमेन्स की सर्विस है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए टू द सिक एंड वुंडेड सोल्जर्स। द फर्स्ट टू रिसिपिएंट्स ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो पहली रिसिपिएंट तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड तो आपको पता ही है कौन है, एक तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही है। फर्स्ट टू रिसिपिएंट्स इसका फ्लोरेंस नाइटिंगेल, शी वाज अवार्डेड द फर्स्ट रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड, एंड द सेकंड लेडी शी वाज जेन सिसिलिया डिबल, ठीक है, इनको मिला था। सो एंड विच मिनिस्ट्री हैज द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड? हमारे इंडिया में ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अब आपको हिस्ट्री पता चली, 15 नर्सेज को मिला इस साल जिन्होंने एक्सेप्शनल सर्विसेज दी है, बट ये जिस नर्स जो फीमेल है जिनके नाम पर ये अवार्ड ही बना हुआ है वो एक ब्रिटिश नर्स थी और उन्होंने क्रीमियन वॉर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एंड शी वाज नोन एज अ फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। पोस्टल डिपार्टमेंट रिलीजेस पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन ध्रुवा। तो येस्टरडे वी डिड डिजिपिन, हमने डिजिपिन के बारे में पढ़ा था, बट ये पॉलिसी जो है इट इज रिलेटेड विद डिजिपिन ओनली, ठीक है। तो आपको ध्रुवा के बारे में पता होना चाहिए। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट is advancing a transformative initiative to establish a standardized geocoded addressing system in India aimed at simplifying the address solutions for a citizen-centric delivery of public and private services. So the thing is, yesterday we did Digipin. Digipin क्या है? मैंने बोला था it is a digital identity of your address. इंडिया में एड्रेस को लोकेट करने के लिए हमें पहले स्ट्रीट्स का नेम बताना पड़ता था कि जी इस स्ट्रीट पे, जैसे लाइक है ना मॉडल टाउन रोड के ऊपर मेरा घर जो है स्कूल के बैक साइड के ऊपर है, तो हम स्ट्रीट्स के नेम से रिकॉग्नाइज करते थे। फिर लैंडमार्क्स थे, लैंडमार्क के पास से उस बंदे को हम आइडिया देते थे कि हमारा एड्रेस यहाँ पर है। तो इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। किसी ने लेटर लिखना होता था तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पाती थी। द रीजन बीइंग कि एक तो स्ट्रीट्स का नेम भी जो है सिमिलर होता था, एक जैसी दो स्ट्रीट्स भी हो सकती हैं सेम नेम से, और द सेकंड थिंग इज कि लैंग्वेज बैरियर था। इंडिया के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो इट वाज डिफिकल्ट टू लोकेट द एड्रेस ऑफ द पर्सन। तो इसलिए लाइक जैसे हमें आधार में हमें एक पर्सन को यूनिक आइडेंटिटी दी गई है, आधार कार्ड, हर एक पर्सन का आधार नंबर सेपरेट है, यूनिक है, उसके बायोमेट्रिक्स से उसके अंदर जो है डेटा स्टोर्ड है, यूनिक आईडी कार्ड है एक पर्सन का। सिमिलरली एड्रेस का भी एक यूनिक आईडी कार्ड आने वाला है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिजिपिन। डिजिपिन जो है वो जियो कोड्स को यूज करके, बेसिकली लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को यूज करके पूरे इंडिया को 4 मीटर इंटू 4 मीटर के ग्रिड्स में डिवाइड करेगा। पूरे होल ऑफ द इंडिया विल बी डिवाइडेड इंटू 4 मीटर, 16 स्क्वायर मीटर के ग्रिड्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। तो इंडिया के अंदर ये बैरियर्स थे कि एड्रेस लोकेट करना बड़ा मुश्किल था। तो अगर कोई अर्जेंट सर्विसेज है, लाइक हमें जैसे कि हमें फायर सर्विसेज, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस
या कोई ऐसी चीज लेनी है तो वो एग्जैक्ट लोकेशन पे कैसे पहुंच पाएगा? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट द एड्रेस। तो अब जो हमारे इंडिया में पिन कोड बनाए गए थे, पिन कोड बनाने का भी यही पर्पस था कि जो एग्जैक्ट डिलीवरी है किसी लेटर की, जो मेल की है, वो उस घर पे हो सके, उस एड्रेस के ऊपर हो सके। बट पिन कोड के अंदर प्रॉब्लम ये है कि पिन कोड जो है एक वाइडर ब्रॉड एरिया का पिन कोड होता है। तो पिन कोड इंडिया में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं। तो हर एक पोस्ट ऑफिस का एक पिन कोड जहाँ पर एलोकेटेड है वहाँ का अपना एक पोस्ट ऑफिस है और वो एक ब्रॉड एरिया है। बट डिजिपिन से जो क्या होगा, एक प्रिसाइज लोकेशन पता चल जाएगी। 4x4 का ग्रिड, समझ लो कितनी छोटी जगह है 4x4, उतनी जगह का ये प्रिसाइज लोकेशन बताएंगे विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स के लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को यूज करके उसकी प्रिसाइज लोकेशन पता चल जाएगी। अब इससे क्या होगा कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज होगी, जो भी है ना, ई कॉमर्स की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक्यूरेटली जो है एड्रेस। अब बेसिकली इट विल बी अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विद द गवर्नमेंट। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आधार एक डिजिटल डेटा सेट है ना, पर्सन की आइडेंटिटी का डिजिटल डेटा सेट है। सिमिलरली एड्रेस का जो है वर्चुअल या डिजिटल डेटा सेट जो है डिजिपिन के अंदर आने वाला है। अब ये न्यूज जो है ये क्या है, ये ध्रुव पॉलिसी जो है उसी की लाइन में है। ध्रुव पॉलिसी है, देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज एडवांसिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव। ये ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव ही तो है। एक स्टैंडर्डाइज एड्रेसेस इंडिया के अंदर स्टैंडर्डाइज नहीं थे। आज अगर मैं आपसे पूछ लूं आप एड्रेस नंबर बता दोगे, बट अगर आप रिमोट एरियाज में जाओ, हिली एरियाज में जाओ, वहां पर कौन से एड्रेसेस हैं? वहां पर ट्राइबल एरियाज में कोई एड्रेसेस नहीं है। कैसे पता चलता है कि ये किस जगह का कौन से एड्रेस, किस घर में जाना है? तो वो लैंडमार्क्स बताते हो आप, है ना, लोकेशन बताते हो, कोई लैंडमार्क बताते हो, वहीं से पता चलता है। तो इट विल स्टैंडर्डाइज, जियो कोडिंग हो जाएगी एड्रेसिंग सिस्टम की इन इंडिया। इट विल सिंप्लीफाई द एड्रेस सॉल्यूशन फॉर किस चीज के लिए? सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज। डिजिपिन माइलस्टोन इन दिस रिगार्ड, द लॉन्च ऑफ डिजिपिन की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो इट इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन दिस जर्नी। ध्रुवा पॉलिसी, building on the foundational work, the department has now released a comprehensive policy document titled, ध्रुवा का फुल फॉर्म लिख लो जी आप, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। आप बोलोगे ध्रुवा क्या है सर? इट इज अ पॉलिसी। पॉलिसी टू डू व्हाट? द पॉलिसी टू स्टैंडर्डाइज एंड जियो कोड द एड्रेसिंग सिस्टम इन इंडिया। ध्रुवा इज अ पॉलिसी एंड इस पॉलिसी के अंदर कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है? आप बोलेंगे डिजिपिन। तो ध्रुवा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेसेस। नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क। तो लाइक आई हैव टोल्ड यू दैट दिस डिजिटल फ्रेमवर्क और ये जो वर्चुअल एड्रेसेस का जो ये फ्रेमवर्क है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आधार ने एक पर्सन को यूनिक आइडेंटिटी दे दी, डिजिपिन एड्रेसेस को यूनिक आइडेंटिटी दे देगा कि ये एड्रेस जो है इसी लोकेशन के ऊपर है। यूपीआई ने पेमेंट्स को इजी कर दिया, ऑल ओवर इंडिया यूपीआई से पेमेंट्स होती हैं। डिजी लॉकर ने आपके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सिग्निफिकेंस ऑफ ध्रुवा, सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये तो आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये लॉजिकली आप समझ गए होंगे। क्रिटिकल कम्युनिकेशन कंपोनेंट है ये, क्योंकि एड्रेस एक कम्युनिकेशन कंपोनेंट है। बोलो यस और नो। आपके घर पे कोई चीज डिलीवर करनी है तो कम्युनिकेशन ही है, एक चीज को डिलीवर करना है मुझे आपको। ओवर टाइम दे हैव इवॉल्व्ड टू टेक डिफरेंट फॉर्मेट्स। लाइक इनफॉर्मल रेफरेंसेस होती थी पहले, लैंडमार्क्स होते थे, स्ट्रीट्स नेम्स होते थे, डोर नंबर्स होते थे। तो पहले इनफॉर्मल था, स्टैंडर्डाइज नहीं था। उसके बाद वाइडर सोशल रोड बियॉन्ड इट्स इमीडिएट यूटिलिटी। इसका यूज क्या होगा ध्रुवा का? इट विल, यूटिलिटी क्या होगी? एनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। एड्रेसेस नाउ विल सर्व एज अ वाइडर रोल इन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। देन डिस्पाइट चैलेंजेस, डिस्पाइट द सेंट्रलिटी ऑफ एड्रेस इंफॉर्मेशन इन एवरी डे, हम हर कहीं अपना एड्रेस लिखते हैं। Frictions exist in how such data is managed and shared across India. These challenges stem from multiple factors including country's vast cultural linguistic diversity. अब आप लैंग्वेज ही अलग अलग हैं तो आप कैसे ढूंढोगे एड्रेस? हर लैंग्वेज अलग अलग है। द यूज ऑफ इनकंसिस्टेंट एड्रेस फॉर्मेट्स, एड्रेस फॉर्मेट अलग है। कई जगह पर पहले ब्लॉक का नाम आता है, बाद में एड्रेस नंबर आता है। कहीं पर पहले हाउस नंबर आता है, बाद में ब्लॉक का नंबर आता है। तो फॉर्मेटिंग भी अलग अलग है। एंड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एड्रेस डेटा अक्रॉस सिलोड सिस्टम। सिलोड मतलब डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, ऐसे मतलब तोड़ तोड़ के रखा हुआ है। एक सिंगल डेटा सेट हमारे पास नहीं है, सिलोड सिस्टम है। इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, वर्क फ्लो ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज एंड बेनिफिट्स टू पीपल हैज इंक्रीजिंगली शिफ्टेड टू। अब आप बताओ, डोर स्टेप डिलीवरी करवाते हैं नहीं मोस्ट ऑफ दी चीजें हम
तो यहाँ पर चेंज हो गया, एनहेंसिंग एक्सेसिबिलिटी एंड ओवरकमिंग बैरियर्स। तो ये डिजिपिन क्या हेल्प करेगा, इट विल एनहेंस द एक्सेसिबिलिटी एंड इट विल ओवरकम द बैरियर्स। इट विल डू सोशल इंक्लूजन ऑल्सो। सोशल, अब स्लम एरिया के अंदर जाओ, स्लम एरिया में कौन से एड्रेस लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए ना, तो सोशल एक्सक्लूजन है। वो अगर डिलीवरी चाहें तो उनको नहीं मिल पाएगी, बिकॉज देयर इज नो एड्रेस, नो पिन कोड तो हो भी जाए बट स्ट्रीट नंबर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो सोशल इंक्लूजन होगी या नहीं होगी, एवरीवन विल बी इंक्लूडेड। डिजिपिन तो हर कोई बंदा जहां पर वो है तो वहां पर डिजिपिन क्रिएट हो सकता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से, एग्जैक्ट लोकेशन वहां पर मिल सकती है। नीड फॉर यूनिफाइड एड्रेस सिस्टम, तो यूनिफाइड अप्रोच हो गई, हमारी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बन गया, एनहांस प्रिसिशन है कि नहीं, एनहांस प्रिसिशन। यूनिक डिजिटल एड्रेस फॉर एवरी होम इन इंडिया, तो नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड और डिजिटल डिजिपिन विल स्पीड अप सर्विस डिलीवरी एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो एम्बुलेंस आनी है, कुछ आनी है, तुरंत पहुंच जाएगी विदाउट एनी हैसल। New address system uses the latitude and longitude coordinates to fetch a unique digipin for certain places. Universal accessibility, so it will redefine how we perceive addresses, ensuring that every citizen, even in the remotest part of the country, is digitally locatable and serviceable. चाहे आप ट्राइबल एरिया में बैठे हो, चाहे पहाड़ों में बैठे हो, अब आप डिजिटली लोकेटेबल हो, आप कहाँ हो पता चल जाएगा। Enhanced logistics, last mile delivery, logistic, emergency response, especially in rural and remote regions. मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो इजीली सप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन सप्लाई करनी है, सप्लाई टू द प्रेग्नेंट वुमेन्स को कोई न्यूट्रिशन जो भी है प्रोडक्ट, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर या गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर कुछ सप्लाई करना है वो इजीली सप्लाई हो सकता है। तो ये डिजिपिन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, डिजिपिन तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, डिजिपिन टेक्नोलॉजी, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस अगेन। अलाइनमेंट विद द नेशनल पॉलिसी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्हाट इज पिन कोड, तो ये पिन कोड ये श्री राम भिकाजी वेलंकर ने, इन्होंने जो है ये पिन कोड सिस्टम चलाया था इंडिया के अंदर, श्री राम भिकाजी वेलंकर, एंड इन्होंने ये पिन कोड सिस्टम चलाया था अगस्त 15, 1972 से चलाया था। पोस्टल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है पिन कोड की, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये 6 डिजिट कोड होता है, और जो डिजिपिन है वो कितना होता है, 10 डिजिट। वो कितना है, 10 डिजिट। अल्फा न्यूमेरिक है, उसमें अल्फाबेट्स एंड नंबर्स होंगे जैसे पैन कार्ड के अंदर होते हैं हमारे, बट ये जो है ये 6 डिजिट कोड होता है, पिन कोड जो होता है। तो जैसे अगर आप अपने एरिया का पिन कोड भरोगे तो उसके 6 डिजिट होगी, याद करो आपके पिन कोड 6 डिजिट ही होते हैं। देन पिन कोड जो है वो क्यों लॉन्च किया गया था, बिकॉज मैंने बताया था डुप्लीकेशन ऑफ नेम्स, एक ही नाम की 2-2 स्ट्रीट्स थी, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर्स थे, ये सब प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने पिन कोड स्टार्ट किया। पॉलिसी के अंदर ये इनिशिएटिव है डिजिपिन, वो ब्रॉडर पॉलिसी है, वो पॉलिसी है। पॉलिसी का पर्पस क्या होता है, पॉलिसी इज मेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है ना। जैसे अब मान लो आप एमनरेगा जो है ये पॉलिसी है टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू दी पीपल इन द रूरल एरियाज, है ना, तो इट इज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव एम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली देयर आर मेनी पॉलिसीज। सिमिलरली ध्रुव पॉलिसी इज ऑल्सो देयर इन विच द गवर्नमेंट वांट्स टू build up the virtual addresses as a data set, digital public infrastructure to improve the governance services and to improve the last mile connectivity and to locate the places digitally without any hassle so that any services can be given to the person. हाँ, ध्रुव पॉलिसी के अंदर they have taken this initiative, डिजिपिन एंड ये जो आपका पिन कोड वाला जो हमने पढ़ा, ये पिन कोड में क्या होता है बेसिकली, द फर्स्ट 3 डिजिट इंडिकेट्स वन ऑफ द रीजन्स। तो बेसिकली फर्स्ट 8 आर जोग्राफिकल रीजन्स, 9 रीजन्स में डिवाइडेड है हमारी कंट्री, ठीक है, फर्स्ट 8 जोग्राफिकल रीजन्स हैं एंड 9th वाला जो है वो आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए, ठीक है। फर्स्ट डिजिट 3 डिजिट जो होते हैं वो एक किसी न किसी एक रीजन को बताते हैं। तो जैसे अगर आपका जैसे पिन कोड होगा 141, तो 141 से पता चल जाएगा कि नॉर्थ इंडिया है, कौन सा इंडिया है, तो उसको 8 डिजिट से 8 रीजन्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। 9th रीजन जो है वो आर्मी वाला ही है। तो फर्स्ट 3 डिजिट्स होते हैं वो वन ऑफ द रीजन्स को इंडिकेट करते हैं। देन फर्स्ट 2 डिजिट्स टुगेदर, 2 डिजिट्स सब रीजन्स एंड फर्स्ट 3 डिजिट टुगेदर इंडिकेटर सॉर्टिंग रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये सॉरी फर्स्ट डिजिट नॉट 3, फर्स्ट डिजिट जो है रीजन को रिकॉग्नाइज करता है, फर्स्ट 2 डिजिट जो है सब रीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड फर्स्ट 3 डिजिट जो है वो डिस्ट्रिक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। लास्ट डिजिट जो होते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स रेफर टू द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस है उसको रेफर करते हैं। So Dhruva policy is also over. Now let's move to the next. ADB commits to provide 4.5 billion loan annually to India. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक
अभी रिसेंटली इन्होंने कमिटमेंट दिया कि ये इंडिया को एनुअली 4.5 बिलियन डॉलर्स लोन में देंगे हर साल। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट का नेम आपको नोट डाउन करना चाहिए, मसातो कांडा, मसातो कांडा। एंड एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इट इज़ अ मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी। तो जैसे वर्ल्ड बैंक है ना, आईएमएफ है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास एक रीजन स्पेसिफिक है, एशिया और पैसिफिक जो रीजन के लिए हमारे पास ये बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इट विल प्रोवाइड 4.5 बिलियन डॉलर्स सॉवरन लैंडिंग टू इंडिया ईच ईयर। And ADB agreed to move quickly on large and high impact projects such as bank support for solar rooftops। तो कल पढ़ा था हमने ये, प्रधानमंत्री मुफ्त हर घर, वो जो ये था दीयू वाज द फर्स्ट सोलर पावर्ड डिस्ट्रिक्ट, है ना, ठीक है। एंड ये जो बैंकिंग, ये लोन देगा जो एडीबी, ये किसको सपोर्ट करेगा? टू द सोलर rooftops which can accelerate clean energy adoption across the country। Finance Minister Sitharaman met Kanda and sought enhanced support for integrated rural prosperity initiative to include job creation। Sitharaman also scored the role of private sector also, कि private sector is also important to meet India's infrastructure financing needs and encouraged ADB to play a catalytic role in enabling private investment। तो private investment को increase करने के लिए ADB जो एक कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिक टू मेक अ प्रोसेस फास्टर। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आई हैव गिवन द इंफॉर्मेशन इन दिस स्लाइड। एशियन डेवलपमेंट बैंक एनविजन्स अ प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक रीजन while sustaining its effort to eradicate extreme poverty in the region। तो इसका मेन एम जो है कि गरीबी हटानी है एशिया और पैसिफिक से, और इसका मेन पर्पज़ है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो प्रॉस्पेरस होने चाहिए, सस्टेनेबल होने चाहिए, रेजिलिएंट होने चाहिए। मेंबरशिप इसकी स्टार्टिंग में कितनी थी? 31 मेंबर्स। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1966। अब प्रेजेंटली हाउ मच मेंबर्स आर देयर? 59 मेंबर्स, ठीक है, सॉरी 69 मेंबर्स, 69 मेंबर्स आर देयर। 49, ये जो गलत है, 49 एंड प्लस 20, ये 20, ठीक है। आउटसाइड मेंबर जो हैं वो 20 हैं, और विद इन एशिया वाले जो हैं वो 49 हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 69, ठीक है। विद इन एशिया एंड पैसिफिक में से हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? 49, एंड आउटसाइड एशिया एंड पैसिफिक हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? 20। तो टोटल 69 countries are member of the Asian Development Bank। Which is the latest country to become the member of Asian Development Bank? Israel is the latest country to become the member of Asian Development Bank, and Israel is a outside member। Israel is not a it doesn't come into the Asia region, you know, Asian region में नहीं आता। Support mechanisms, ADB assets its members and partners by providing loans। क्या क्या देता है ये ADB? Obviously loans देगा, और क्या देगा? Technical assistance, equity investment to promote social and economic development। Now history of ADB आप देख सकते हैं, 1960s में इसको कंसीव किया गया था, और ये बोला गया था कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो एशियन कैरेक्टर का हो। हमारे पास वर्ल्ड बैंक तो था, बट वहाँ पर डोमिनेंस किसकी थी? डोमिनेंस डेवलप्ड कंट्रीज की थी, G7 कंट्रीज की थी। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनकी डोमिनेंस थी, यूरोपियन कंट्रीज की डोमिनेंस थी। वो जिसको चाहते थे उसको लोन देते थे। तो इन्होंने सोचा कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए विच शुड बी एशियन इन कैरेक्टर एंड विच शुड फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन इन द पुअरेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड। तो फिर 1960s में ये कंसीव किया गया था। 1963 के अंदर यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पास किया गया था। एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, एशियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। एंड आफ्टर दैट दिस बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? फिलीपींस, कैपिटल ऑफ, ठीक है, कैपिटल फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। हाँ, मनीला में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन मनीला। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। तो पहले एक टीवी आता था फिलिप्स का, पता है आपको, ठीक है, फिलिप्स नाम का टीवी आता था। तो assume that a person is at a shop and he is asking the owner of the shop that I want to buy a Philips TV, and he is saying Manila, he is saying Manila,
तो नाउ यू विल नॉट फॉरगेट कि भाई फिलीपींस की कैपिटल कौन सी होती है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला आती है, और मनीला के अंदर कौन सा बैंक है, क्योंकि उस बंदे को पैसा चाहिए तो वो बैंक में जाएगा ना। कौन से बैंक में जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक में जाएगा, और वहां से पैसे लेके आएगा। नाउ इट इज एच्ड इन योर मेमोरी फॉर एवर, अब नहीं आप भूलोगे उसको, ठीक है। Manila was chosen to, this is one of the way to remember things. If you want to remember facts, you will be reading so many facts. Always try to use the association method. कौन सा यूज करना चाहिए आपको? Association. Always associate things. Like I have associated Manila with Philippines. How I have associated it? Always try to associate in a silly way. बहुत ही मतलब जितना सिली वे में एसोसिएट करोगे उतना ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। अगर रट्टा मारोगे ना, फिलीपींस मनीला, इट विल बी रिमूव्ड, इट विल बी वैनिश्ड फ्रॉम योर मेमोरी विद इन 3, 4, 5 डेज। 10 डेज के बाद मैं पूछूंगा ना, तो यू विल बी थिंकिंग क्या थी, कौन सी थी, नहीं याद नहीं आएगा। ऑलवेज ट्राई टू यूज एसोसिएशन मेथड। इसमें क्या होगा कि आप चीज़ों को एसोसिएट करो, और इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। मेमोरी में तो लिमिट होती है, इतना कुछ याद कर लिया अब और याद नहीं हो रहा, भाई उसको एसोसिएट करो, जितना मर्जी डालते जाओ, ठीक है। तो उसको मनी चाहिए थी, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास चला गया, ले आया। chosen to host the new institution which opened on December 19, 1966, 31 members थे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन नोट डाउन करो, who was the first president of Asian Development Bank? Takeshi Watanabe from Japan. Takeshi Watanabe, he was the first president of Asian Development Bank. India was a founding member, तो हाँ जी, Shall I move ahead? तो इंडिया वॉज अ फाउंडिंग मेंबर, तो 31 मेंबर्स थे ना, उसमें से 1 वॉज इंडिया फाउंडिंग मेंबर इन 1966, एंड इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर। लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन सी कंट्रीज हैं बताइए फिर? जापान एंड यूएस। जापान एंड यूएस आर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, बट इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर। एडीबी ने अपने ऑपरेशन इंडिया में कब स्टार्ट किए थे? देखो, एडीबी 1966 में बना था, बट इट स्टार्टेड इट ऑपरेशन इन 1986। एडीबी ने अभी तक कितने लोन्स दे दिए हैं? अभी 655 पब्लिक सेक्टर लोन्स दे दिए हैं। मतलब अगर वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो $5.95 बिलियन टू इंडिया। सो मच ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है इन द वे ऑफ लोन्स हैज बीन गिवन। तो वापस तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इंटरेस्ट रेट कम होता है। एडीबी करंट सोवरेन पोर्टफोलियो इन इंडिया इंक्लूड 78 लोन्स वर्थ, अभी प्रेजेंटली इतने हैं, 78 लोन्स दे रखे हैं वर्थ $16.23 बिलियन। Israel has become the newest non-regional member of the Asian Development Bank. Israel officially joined the Asian Development Bank as the 69th member, 20th non-regional member. ये 2024 में बना है अभी। हाँ, मिलते हैं। की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया एडीबी पार्टनरशिप, तो की एस्पेक्ट क्या है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बिकॉज आपका एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसका की एस्पेक्ट क्या है बताइए इस पार्टनरशिप के? क्या मिलेगा इंडिया को? फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। तो इंडिया को क्या मिलेंगे? लोन मिलेंगे, ग्रांट्स मिलेंगे, और इन लोन्स को किस लिए यूज किया जाएगा? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? इंक्लूसिव एंड एज वेल एज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मीन्स इट शुड नॉट हार्म द एनवायरमेंट, इट शुड नॉट हार्म द एनवायरमेंट एंड इट शुड बी देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाए और प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड्स सेटिस्फाई। इंक्लूसिव मीन्स it should not, the infrastructure should not be such which should satisfy the needs of only the privileged people, ठीक है। privileged people की सिर्फ नहीं satisfy करनी है, and rather it should satisfy the aspirations of everyone in India, even a marginalized person, vulnerable person, ठीक है, जो कैसे marginally excluded हैं, वो persons जो हैं उनकी भी aspirations fulfill होनी चाहिए। देन ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करेगा, सच एज रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, पावर ट्रांसमिशन, ये तो आपको पता ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता ही है, इट शुड एड्रेस द क्लाइमेट चेंज, रीन्यूएबल एनर्जी, ये सब आपको पता ही है। सोशल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो इंक्लूसिव मैंने आपको बोला ये शुड एम टू रिड्यूस द पॉवर्टी, इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, हर किसी को हेल्थ केयर का एक्सेस मिलना चाहिए। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज द रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके जो चेयरपर्सन है, कौन है जी प्रेजेंट चेयरपर्सन? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन कौन है?
हंसराज गंगाराम आहिर। तो ही इज हंसराज गंगाराम आहिर, ठीक है। हंसराज गंगाराम आहिर द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज ही हैज प्रेजेंटेड द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास फॉर द ईयर ऑफ 2022-23, 2023-24 टू द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो इसमें व्हाट विल यू रिमेंबर? यू विल रिमेंबर द चेयरपर्सन नेम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनके चेयरपर्सन का नेम गंगाराम आहिर। देन इवोल्यूशन देखेंगे, अब इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम कैसे आया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कैसे आया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है ना, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंस के बाद आई है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इवन मैनी ईयर्स बिफोर द इंडिपेंडेंस। बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स थी जो ना, और प्रेसिडेंसीज जो थी और प्रिंसली स्टेट थी बेसिकली सदर्न स्टेट्स के अंदर। तमिलनाडु आई थिंक वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए पहले ही दे दी थी, इंडिपेंडेंस से पहले ही, ठीक है। तो ये पहले ही आ गई थी। नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ लो, द प्रोसेस गैदर्ड मोमेंटम इन द कोर्स ऑफ सेंससेस फ्रॉम 1881 टू, तो ये सेंसस आपको पता कब स्टार्ट हुआ था? 1881 में, जब ब्रिटिशर्स थे। उसके बाद एवरी 10 ईयर्स में सेंसस होता ही होता है। तो यहाँ इस पीरियड के दौरान ये प्रोसेस जो है, इट गैदर्ड मोमेंटम। द बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड गैदरिंग मोमेंटम इन द साउथ इंडिया एंड पर्टिकुलरली इन द तमिलनाडु, वेयर रिजर्वेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड मच बिफोर द इंडिपेंडेंस, तमिलनाडु के अंदर। The Indian Constitution through the preamble envisaged the Indian Republic to achieve the objective of securing its citizens। तो इंडियन preamble के अंदर हमारे क्या लिखा हुआ है? To give justice, है ना। जस्टिस कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस कैसे देते हैं हम भाई? सोशल डिस्क्रिमिनेशन की गई है हमारे इंडिया में, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुई है बैकवर्ड क्लासेस के साथ, शेड्यूल कास्टेस के साथ, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ क्या हुई है? डिस्क्रिमिनेशन। तो ये क्या है? सोशल इनजस्टिस है। दे वर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू take education, they were not given the opportunities to take occupation of their choices, they were excluded from the society, they were not allowed to go to the public places and use the public places, है ना, वो नहीं use करने दिया गया। So therefore they are educationally backward, they are financially backward, they are you can say they are occupationally backward also, क्योंकि उनके occupations ऐसे हैं। तो फिर social justice कैसे देंगे हम? आज अगर एक बैकवर्ड क्लास का स्टूडेंट है या एक बैकवर्ड क्लास का पर्सन है या एक शेड्यूल कास्ट जो कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको अगर आप बोलेंगे कि इस एग्जाम के अंदर आप कॉम्पीट करो, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी का पर्सन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक क्राइटेरिया के वजह से नहीं मैं बोल रहा हूँ। इकोनॉमिक क्राइटेरिया तो ये होता है कि उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। जनरल कैटेगरी वाले लोगों के पास भी ऐसा हो सकता है कि वो फाइनेंशियली वीक हो, है ना। गरीब आदमी तो जनरल कैटेगरी वाला भी हो सकता है और ओबीसी वाला भी हो सकता है, बट गरीब होना एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना दोनों डिफरेंट है। एक जनरल कैटेगरी वाला इंसान जो गरीब था, उसको रोका नहीं गया था कि भाई आप एंटर नहीं कर सकते, आप एजुकेशन नहीं ले सकते, आप साथ नहीं बैठ सकते, आप क्लास के अंदर नहीं बैठ सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। वो कर सकता था, इट्स जस्ट बिकॉज कि उसके फाइनेंशियल सिचुएशन वीक थी। बट जो ओबीसी है, जिसको अगर आप कह सकते हैं कि भाई आप कॉम्पीट करो, तो उसका बैकग्राउंड अगर देखोगे तो उसकी फैमिली एजुकेशनली बैकवर्ड होगी, फाइनेंशियली बैकवर्ड होगी, ठीक है। तो उसको आप अपलिफ्ट कैसे करोगे? यू विल हैव टू गिव द रिजर्वेशन। क्या देना पड़ेगा आपको? रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। उनके लिए सीट्स क्या करनी पड़ेंगी? रिजर्व करनी पड़ेंगी। क्योंकि आज आप बोलो कि भाई हम बैकवर्ड क्लासेस को सब्सिडीज दे देते हैं, तो भाई पैसे तो आ जाएंगे, बट एजुकेशन तो जनरेशन टू जनरेशन आती है ना। यही होता है कि नहीं होता? सडनली थोड़ी आ जाएगी। तो इसलिए हमें सोशल जस्टिस देने के लिए क्या देना पड़ता है? रिजर्वेशन देनी पड़ती हैं। तो रिजर्वेशन तो तब देंगे ना, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई बैकवर्ड क्लास कौन है। पहले आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो हमारे पास आर्टिकल कौन से हैं? हमारे पास आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच पुट्स अ मैंडेट अपॉन द स्टेट नॉट टू डिनाई एनी पर्सन द इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ करनी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ करना है, पता ही है आपको। इक्वालिटी कट ऑफ सेम कैसे रख सकते हैं आप? एक जनरल कैटेगरी वाला बच्चा जो शुरू से उसको एजुकेशन अच्छी मिली है, उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी हेल्प ली है, उसकी कट ऑफ तो बैकवर्ड क्लास पे एज अ कंपैरेटिव हाई जाएगी। सीट तो रिजर्व करी है कि ये सीट्स जाएंगे सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनकी कट ऑफ हाई रख दोगे तो नो वन विल बी एबल टू गेट अप टिल दैट कट ऑफ। वहां तक कैसे पहुंचेगा? कोई नहीं पहुंच पाएगा।
कई पर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है एज कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी। आपने अगर देखा हो कभी ये राजस्थान वाली साइड में या इस साइड में कई बार ओबीसी कैटेगरीज की जो कट ऑफ है ना वो जनरल से ज़्यादा चली जाती है। तो आप कह रहे हो ना कट ऑफ सेम रखो, कट ऑफ कैसे सेम रख सकते हो आप? जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स देखोगे तो उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होती है, कितने उनके एवरेज मार्क्स आते हैं। एंड जो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो अकॉर्डिंग टू उनके कैटेगरी के लोगों के अकॉर्डिंग डिसाइड होएगी ना। एंड उसके बाद उनमें से लोग सिलेक्ट किए जाएंगे कि कौन से लोग जो हैं इनकी इस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं और उनकी एडमिशन होगी। वाई आर यू नॉट कन्विंस्ड? द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 में हमारे। देन आर्टिकल 15, एंड वी सच इज नॉट टू डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन, तो किसी भी सिटीजन के साथ क्या नहीं करनी है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? कि स्टेट चाहे, हमारी गवर्नमेंट चाहे तो वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है किसकी अपलिफ्टमेंट के लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। किस मैटर में स्पेशल प्रोविजन बना सकती है? इन एडमिशन टू द, इसीलिए जितने भी आपके सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहां पर स्पेशल प्रोविजन क्या है? रिजर्वेशन है। क्या है वहां पर? रिजर्वेशन इज वन ऑफ द एफर्मेटिव एक्शन, बट वहां पर उनके लिए फीस भी कम है, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशल प्रोविजन। तो रिजर्वेशन इज वन ऑफ द एफर्मेटिव एक्शंस, देयर आर मेनी एफर्मेटिव एक्शंस। उनके लिए बुक्स फ्री हो सकती हैं, उनके लिए फीस कम हो सकती है, उनके लिए सीट रिजर्व हो सकती हैं। सो दीज आर द स्पेशल प्रोविजंस व्हिच आर मेड फॉर द SEBCs, है ना, SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, जिसको हम क्या बोल लेते हैं? OBCs, अदर बैकवर्ड क्लास। और ये तो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल प्रोविजंस बनाने की पावर, बट आर्टिकल 16 जो है वो पावर देता है स्पेशल प्रोविजंस इन द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली जितनी सरकारी नौकरियां हैं, जैसे जज की कोई पोस्ट आई, ठीक है, या फिर कोई जो PCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच में पोस्ट आई, तो कुछ जनरल कैटेगरी की सीट्स होती हैं, कुछ OBCs के लिए रिजर्व्ड होती है कि नहीं? तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर स्पेशल प्रोविजंस डालने की पावर कहाँ से आती है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 declares that nothing in the article shall prevent the state from making any provision for the reservation of the appointment in the favor of backward classes of citizens। तो उनके लिए बनाई जा सकती है, ठीक है। नहीं मिलेगा ना, क्रीमी लेयर में आ जाएंगे ना वो। अगर एक फादर है उसको मिल गई, मान लो कि वो UPSC क्लियर कर लेते, ठीक है, और UPSC में IPS IAS लेवल का वो पर्सन बन गया, अब उसके आगे वाले जो बच्चे हैं उनको नहीं मिलेगी रिजर्वेशन। ऑल्दो ये बुक्स में है, ये थोड़ा सा गिमिक्स करके, थोड़ा मैनिपुलेशन करके मिल जाती है रिजर्वेशन, पर क्रीम मतलब ये मिल जाती है उनको भी। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि दोज हु आर ऑलरेडी अपलिफ्टेड दे आर नॉट इन द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रिजर्वेशन, है ना। रिजर्वेशन तो अपलिफ्टमेंट के लिए दी गई है ना, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो समझाना मुझे आपको, ये पूरा मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि सबसे पहले इंडिया के अंदर, आपको पता तमिलनाडु में बिफोर इंडिपेंडेंस से OBCs को मिल रही थी। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये डिमांड उठने लगी कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन OBCs की मोर देन 50% है, तो OBCs के लिए बेनिफिट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी लेके आनी चाहिए, रिजर्वेशंस लेके आनी चाहिए। तो पहले कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई, और फर्स्ट OBC कमीशन का जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? काका कालेकर, ठीक है, ये थे ही वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द बैकवर्ड कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट अपॉइंटेड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अंडर आर्टिकल 340, कब बनाई गई थी ये? जनवरी 29, 1953। देख लो आप, काका कालेलकर कमीशन, काका कालेलकर कमीशन। इट वाज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिमूव द डिफिकल्टी एंड टू इंप्रूव देयर कंडीशंस। इन्होंने इतनी जो है कास्ट जो थी उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये बैकवर्ड है, एंड इनमें से जो इतनी है ये मोस्ट बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड से भी बैकवर्ड है, समझ में आई। एंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कब की गई थी? इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है अपनी 2 साल के बाद, ऑलमोस्ट 1955 में। इट वॉज कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर 5 साल, गवर्नमेंट इसको देखती रही, सोचती रही, एंड फाइनली गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम रिपोर्ट नहीं मानेंगे। देन फिर प्रोटेस्ट और ये इंडिया में डिमांड उठने लगे कि वी नीड रिजर्वेशन फॉर द OBCs। देन सेकंड बैकवर्ड कमीशन वाज मेड, एंड इसको तो ये तो बहुत ही फेमस है क्योंकि इनका ये इसको बोलते हैं मंडल कमीशन। इसको क्या बोलते हैं हम? मंडल कमीशन, ठीक है।
तो फेमसली नोन एज द मंडल कमीशन। और ये कब ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है December 31, 1980, ठीक है। और इन्होंने बोला कि भाई देखो बनी थी 1979 में और रिपोर्ट सबमिट कर दी 1980 में, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, कितने परसेंट पॉपुलेशन है ओबीसी की, 52%। तो इन्होंने रेकमेंड करिए क्राइटेरिया कि क्या स्टेप्स उठाने चाहिए फॉर द एडवांसमेंट एंड एग्जामिनिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्ट इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। इन्होंने बोला रिजर्वेशन देनी पड़ेगी इनको अपलिफ्ट करने के लिए। देन अब फिर गवर्नमेंट ने जब ये 1980 में आई है तो इम्प्लीमेंट कब किए, जाके इम्प्लीमेंट करिए 1990s में जाके, 10 साल के बाद जाके इम्प्लीमेंट की। और जब ये इम्प्लीमेंट की तो इसको चैलेंज कर दिया गया। और एक लैंडमार्क केस है आपके सुप्रीम कोर्ट का, आपको पता होना चाहिए, उसका नाम क्या है, इंदिरा सानी। ये देखो लिखा भी हुआ है, इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको फेमसली क्या बोलते हैं, मंडल कमीशन केस। तो इसको चैलेंज कर दिया गया क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 27% पोस्ट इंडिया के अंदर जो सीट्स जो हैं रिजर्व कर दी गई थी, किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। 27% सीट्स रिजर्व कर दी गई थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने वाली उस टाइम पे जो सरकार थी वो थी वीपी सिंह की, ठीक है। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वीपी सिंह। और उन्होंने 27% सीट्स रिजर्व कर दी थी ऑल द सिविल पोस्ट इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं 27% रिजर्व कर दी। वीपी सिंह ने, चैलेंज हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया मसला। उन्होंने बोला राइट टू इक्वालिटी कहाँ से, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे क्या हो रही है। और हमें आर्टिकल 14-15 में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब है कि नहीं। तो उसमें से वन ऑफ द फैक्टर इज कास्ट। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया सर कास्ट के बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कास्ट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, ओबीसी जो है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। क्या है ये, इट इज नॉट अ कास्ट, इट इज अ क्लास ऑफ पीपल। कास्ट एंड क्लास में फर्क है। ये कास्ट नहीं, कास्ट बेस के ऊपर नहीं, कास्ट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, बट ये क्या है, एक क्लास ऑफ पीपल है। क्लास ऑफ पीपल कौन से, दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। नाउ हाउ कैन आई से कि दिस इज अ सेपरेट क्लास, दिस इज अ सेपरेट क्लास ऑफ पीपल। अगर मैं इस पूरी क्लास को डिवाइड कर दूं और मैं बोलूं कि दीज स्टूडेंट्स आर अ सेपरेट क्लास इन देमसेल्व्स एंड दीज स्टूडेंट्स आर अ सेपरेट क्लास इन देमसेल्व्स, तो एक क्लास, इसको कैटेगराइज करने के लिए आई मस्ट हैव सर्टेन फैक्टर्स इन माय माइंड कि जिस बेसिस पे मैंने कैटेगराइज करा है। आप लोग पूछोगे ना सर ऑन व्हाट बेसिस यू हैव कैटेगराइज्ड, है ना, नहीं मे बी आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि इसको कैटेगराइज करने के लिए फैक्टर्स तो लिए ही होंगे मैंने। वैसे ही एससी बीसी को कैटेगराइज करने के लिए फैक्टर्स क्या हैं, वन ऑफ द फैक्टर इज कास्ट, नो डाउट, वन ऑफ द फैक्टर इज कास्ट, अनदर फैक्टर इज इनकम क्राइटेरिया, थर्ड फैक्टर इज ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, फोर्थ इज एजुकेशन, फिफ्थ इज द रेजिडेंस वेयर दे आर लिविंग, रेजिडेंस। तो मेनी फैक्टर्स, सब फैक्टर्स को क्यूमुलेटिवली देखने के बाद इन्होंने डिसाइड करा कि दीज कैटेगरीज आर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज वैलिड, इसमें कोई गलत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर लिखा है दैट इट हेल्ड दैट द गवर्नमेंट ऑर्डर वाज वैलिड एंड एनफोर्सेबल। बट इंदिरा सानी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड कितने परसेंट, तो अगर 100% सीट्स है 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। बट इसमें ही एक कोर्ट ने ये बोल दिया था कि इट कैन एक्सीड ओनली इन, क्या लिखा है यहाँ पर, कंपेलिंग। तो मतलब एक्सेप्शन है, अगर आप सदर्न स्टेट्स में जाओगे तो यू विल फाइंड कि 69% रिजर्वेशन है, वहां पर 70% रिजर्वेशन है। तो आप बोलोगे सर 50% तो इंक्रीज करेगी, और इंदिरा सानी की जजमेंट तो कह रही है कि 50% से आगे नहीं जाना चाहिए। बट सदर्न स्टेट्स में है, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग इट, आई थिंक इट इज इन तमिलनाडु, आई थिंक इट इज इन तमिलनाडु 69%, चेक कर लेना, उसके अंदर 69% रिजर्वेशन होगी तमिलनाडु के अंदर। तो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इन फार फ्लंग एरियाज, दूर दराज के जहाँ पर ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर तो फिर 50% से ज़्यादा ही दोगे ना, समझे नहीं मेरी बात। सपोज करो कि एक स्टेट है, वहाँ पर टोटल पॉपुलेशन अगर देखोगे तो सपोज करो कि 70% ओबीसी है और 30% जनरल है, और सपोज करो 100 सीट्स निकली, जुडिशियल वैकेंसीज निकली, 100 में से 50% तक आप कर सकते हो मैक्सिमम। तो 70% पॉपुलेशन के लिए 50 सीट, 30% पॉपुलेशन के लिए 50 सीट्स, तो गलत हो जाएगा ना।
तो फिर जहां पर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस है वहां पर तो फिर क्या होने, वो ज्यादा भी एक्सीड कर सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं? तो यहाँ पर जो आपने बोला ना कि सर क्रीमी लेयर, सर उनको जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो ये एससीबीसी के अंदर आ रहे हैं बट जो किस में फॉल करते हैं, क्रीमी लेयर। अब क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया क्या है? क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया है इनकम क्राइटेरिया, प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है। अगर अर्बन एरिया में उसकी उनका एक घर है इतने स्क्वायर मीटर का, उनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, 8 लाख से ज़्यादा एनुअली, तो वो किस में फॉल करते हैं, क्रीमी लेयर में फॉल करते हैं। और क्रीमी लेयर में जो फॉल करता है उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। लिखा है हु फॉल इन द क्रीमी लेयर विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं ना। जरूरी नहीं कि उनके पेरेंट्स ने रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया तो अब उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। द पॉइंट इज कि भाई वो क्रीमी लेयर उसका जो क्राइटेरिया उसमें फॉल करते कि नहीं करते। तो उसमें इनकम क्राइटेरिया है, प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया है। जैसे मैंने बोला कि अगर रूरल एरिया में तो ज़मीन थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर ज़मीन इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है। अर्बन एरिया में उनका जो घर है इतने स्क्वायर मीटर, वो कुछ क्राइटेरिया है। इफ़ यू विल सर्च ऑनलाइन आपको मिल जाएगा कि कितना होना चाहिए। तो इवन इफ उनके पेरेंट्स को नहीं मिला कोई रिजर्वेशन, बट अगर उनका क्रीमी लेयर के अंदर फॉल करा, दे विल नॉट गेट द बेनिफिट। बट लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मैनिपुलेट कर लेते हैं, ले लेते हैं बेनिफिट रिजर्वेशन का। फिर इसी केस के अंदर, इंदिरा साहनी केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बनानी चाहिए, एक बॉडी बनानी चाहिए, परमानेंट बॉडी इन द नेचर ऑफ कमीशन फॉर ट्रिब्यूनल्स, और इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाया था ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट। हमारे पास 2 थी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी। तो उन्होंने बोला इस ओबीसी के लिए भी आपको एक क्या बनानी चाहिए, नेशनल बॉडी बनानी चाहिए। तो जो ये चीज़ देखे, क्योंकि देखो उस बॉडी को रिक्वेस्ट जाती है कि सर ये जो कास्ट है इसको ओबीसी में इंक्लूड किया जाए, या ये कास्ट अब अपलिफ्ट हो चुकी है इसको ओबीसी से एक्सक्लूड कर दिया जाए। तो ये कौन सी बॉडी चेक करेगी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा, गंगाराम आहिर, हंसराज गंगाराम आहिर। नहीं, वो तो उन्होंने तो बोला था कि रिजर्वेशन का बेनिफिट, उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उन्होंने तो ये लिखा हुआ है एससी एंड बीसी, सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस। एससी बीसी के अंदर ओबीसी भी आ सकते हैं, एससी भी आ सकते हैं, एसटी भी आ सकते हैं। अगर आप आर्टिकल 16 देखोगे वहाँ पर एससी बीसी के लिए तो है ही है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी है अलग से। तो उन्होंने तो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन बना ही दिया, उन्होंने तो लिख दिया कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। गवर्नमेंट ने बनाई भी, क्योंकि बेसिकली वोट बैंक भी तो है ना। गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर वर्क ही नहीं करेगी, गवर्नमेंट अगर रिजर्वेशन ही नहीं देगी तो वोट्स नहीं मिलेंगी। वोट बैंक तो बहुत ज़रूरी है। चलो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वोट बैंक के कारण मिलनी चाहिए रिजर्वेशन। रिजर्वेशन तो जनरली जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है उनको मिलनी चाहिए। बट ये था कि 10 साल के लिए दी गई थी, 20 साल के लिए दी गई थी, नाउ इट इज एक्सटेंडिंग, है ना, इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं हम। और एक्चुअल जिसको इस रिजर्वेशन का जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए वो तो आज भी उनको नहीं मिल रहा है, आज भी उनको नहीं मिल रहा है। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैकवर्ड कमीशन, तो आप देखिए इसके लिए पहले इसको एक ना स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी पहले, अर्लियर इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था बैकवर्ड क्लासेस एक्ट। बट लेटर ऑन इन 2018 इट वाज कॉन्फर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। कौन सा आर्टिकल बना दिया, आर्टिकल, तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो हम बोलेंगे इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 338 कैपिटल बी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल चुका है। इज दैट फाइन, बोलो। चलो, आफ्टर मिजोरम, हाँ जी, 338 कैपिटल बी। आफ्टर मिजोरम, गोवा अचीव्स 100% लिटरेसी अंडर ULLAS स्कीम। तो मैंने एक वो डाला था, क्विज डाला था मैंने, एक क्विज में मैंने डाला था कि विच स्टेट हैज़ बिकम 100% क्लेम्स 100% लिटरेसी रेट, तो वो कौन सी थी, मिजोरम। बट अब मिजोरम के बाद किसके पास 100% 100% लोग वहाँ पर लिटरेट हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। कौन सी है ये, गोवा। अब गोवा बन गई है, गोवा 100% लिटरेसी रेट, गोवा हैज अटेन्ड 100% लिटरेसी अंडर ULLAS नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर गोवा के कौन है भाई, प्रमोद सावंत।
उन्होंने क्लेम किया है। ठीक है, रिजर्वेशन तो कहीं भी हो सकती है पूरे इंडिया में, जहाँ मर्जी बनाए गवर्नमेंट कर सकती है। एज पर 2011 सेंसस मिजोरम की लिटरेसी 9.33 आई थी, बट इसी फाउंडेशन को बिल्ड करते हुए ULLS प्रोग्राम के अंदर जो नॉन लिटरेट थे उनको भी एडुकेट करके मिजोरम ने तो 100% अचीव करी है, गोवा ने भी अचीव कर ली है। ठीक है, फुली लिटरेट स्टेट थी। और ये मिजोरम के चीफ मिनिस्टर का नेम आप लालदुहोमा, और गोवा के प्रमोद सावंत। अब ULLS स्कीम क्या है जी? In order to ensure literacy and numeracy among all youth and adults, both men and women aged 15 years and above in India, the government has been implementing various schemes from time to time and to convert non-literates into literates. अब ULLS का जो पूरी फुल फॉर्म है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ lifelong learning, understanding of lifelong learning for all in the society. The government of India launched a centrally sponsored scheme. एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर द होल ऑफ द मनी इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर इसमें डिवाइड होता है रेशो। तो जैसे 50% फंड्स विल बी कम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, 50 विल बी फ्रॉम स्टेट। तो ये ULLS की फुल फॉर्म पता चल गई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। 15 साल से ऊपर के जो अडल्ट हैं उनको क्या करना है? स्कीम्स के थ्रू लिटरेट करना है। ठीक है, देन ये स्कीम जो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अप्रैल टू ये इसके अंदर ही कवर्ड होती है। इसको ULLS भी बोलते हैं पॉपुलरली। ठीक है, NIPL, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। द स्कीम एम्स टू कवर अ टारगेट ऑफ 5 करोड़। अभी इनका टारगेट है 5 करोड़ लोग जो नॉन लिटरेट हैं इन द एज ऑफ 15 ईयर्स, उनको कवर करना है। तो इट इज अ बीकन। बीकन मतलब क्या होता है? बीकन मतलब बीकन तो होती है जो गाड़ी के ऊपर लाइट लगी होती है, रेड बीकन, जो ये पुलिस ऑफिसर लगा के नहीं चलते रेड बीकन। ठीक है, रेड बीकन है ना। एक बीकन होता है सिग्नल और यू कैन से सिंबल। ठीक है, बीकन इज अ सिंबल और सिग्नल। तो इट एक्ट एज अ सिंबल ऑफ होप to illuminate the path to education and personal growth. The focus is to impart what? Literacy, including reading, writing, numeracy skills to achieve 100% of the literacy nationwide by 2030. कितना फाइनेंशियल आउटले है इसका? 1037 करोड़। 2022 से लेकर 2027 तक की स्कीम है ये। इसमें रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी स्किल तो आती है, इसके अलावा क्रिटिकल लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी। आप में से कितनों को फाइनेंशियल लिटरेसी पता है? फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? सेविंग्स क्या होती हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं, ये सारी क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी भी ये देंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी भी देंगे, कमर्शियल स्किल्स भी देंगे, एंड इवन क्या देंगे? वोकेशनल स्किल्स। मतलब कोई छोटा मोटा वोकेशन काम आना चाहिए बंदे को, स्किल आना चाहिए ताकि उसको क्या मिल सके? एम्प्लॉयमेंट। So with this, this is over now. Coming to the next news. बस ये लास्ट ही है. This is the last. सर्वम, ठीक है, just give me 1 minute.